ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। यानी कि समीकरण। इक्वेशन जिवें कि नेम तो ही पता चलता है, इक्वेट यानी इक्वल, कुछ इक्वल मीनस बराबर। तो अपने कोल बराबर दे लैफ्ट हैंड साइड ते जेकर आपां कुछ लै लीए, सपोज करो 4x + 5, तो उहदी राइट साइड ते भी कुछ आपां लै लीए, मान लो लै लिया 10, तो अपने कोल आपां देख सकते हाँ कि आह वाली जिहड़ी टर्म है ਉਹ ਇਸ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ। x ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਘਾਤ ਹੈ 1। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ यानी कि रेखी समीकरण। रेखी समीकरण इस तरह दियां समीकरणों ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਉੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਸ ਯਾਨੀ ਘਾਤਾਂ 1 ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दो घाती समीकरण दी। दो घाती नेम तो ही पता चलता है, यानी कि जिहड़ी पावर होएगी चलदी वेरीएबल दी वो अपने कोल मैक्सिमम पावर 2 होएगी। सो उस तरह की इक्वेशन डिस्कस करते हैं। दो घाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। हाँ जी, इस तरह की जिहड़ी इक्वेशन है जिथे वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a not equal to 0, ऐसी इक्वेशन ਆਪਾਂ बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो घाती समीकरण। हाँ जी, इन्हू समझ लो। ax² + bx + c = 0, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जनरली अपने कोल 3 टर्म्स ਹੋਣਗੀਆਂ। एक टर्म x² ਦੇ ਵਿੱਚ, दूजी x ਦੇ ਵਿੱਚ, तीजी कॉन्स्टेंट टर्म होएगी ਤੇ बराबर होएगा 0। मैक्सिमम पावर x ਦੀ 2 होनी चाहिए है, ਤੇ ਇੱਥੇ a b ਤੇ c ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, यानी कि वास्तविक संख्यावां ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ a ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ a ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ a ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ x ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ x ਦੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ a ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 नहीं हो सकता। b ਤੇ c ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ b ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, c ਨੂੰ ਵੀ 0 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ a ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ 0।
ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 ਨੂੰ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਔਰ ਨੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ x + 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਰਾਈਟ हैंड साइड ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 × x - 3। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਯਾਨੀ a + b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a² यानी x²। आ वाली टर्म अपनी a होएगी, आ वाली टर्म होएगी b। सो a ਦਾ ਸਕੁਅਰ यानी x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, b ਦਾ ਸਕੁਅਰ यानी कि 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ करके 1 मिल जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 × a ਤੇ b, x ਤੇ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲੀ 2x ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ, 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2x, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 2 × 3 ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ a + b² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a² + b² + 2ab। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x² + 1 + 2x। 2x ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6 ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ 6 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਇੱਧਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਓਕੇ, x² ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ, x² ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2x ਪਲੱਸ ਦੇ 2x ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, प्लस दे 1 प्लस दे 6 प्लस दा 1 ये मिल के देंगे अपन प्लस दे 7 इक्वल टू 0। हाँ जी, ये x² वाली टर्म प्रेजेंट है, इनू आप फर्दर आ फॉर्म च भी लिख सकते हैं, x² + 0x + 7 इक्वल टू 0। इन केस तुसी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये भी ठीक है। सो यह बन गया किस टाइप का, ax² + bx + c टाइप दिया लिख लेंगे, विच इज of the form ax² + bx + c is equals to 0। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं जो कि ax² + bx + c = 0 वर्गा है, इसलिए यह दो घाती समीकरण है। सो yes it is quadratic इक्वेशन। ओके, नैक्सट पार्ट देखते हैं। नैक्सट पार्ट सैकेंड दे विच अपने कोल लैफ्ट हैंड साइड ते सिंपल एक एक्सप्रैशन है x² - 2x, राइट हैंड साइड दे उत्ते अपने कोल एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे बाहर मौजूद है -2। सो ब्रैकेट ओपन करनी पेगी सब तो पहला आपां नूं, लैफ्ट हैंड साइड ते एज इट इज x² - 2x आ जाएगा, राइट हैंड साइड दे उत्ते ब्रैकेट ओपन करने वेले -2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, मिलेगा -6। नैक्सट टाइम -2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना है आपां x ਦੇ ਨਾਲ, माइनस बाहर है, माइनस ही अंदर है, माइनस बाहर होवे तो अपने को अंदर वाले साइनस चेंज हो जाते हैं। सो यह बन जाएगा प्लस का साइन, 2 ਦੇ ਨਾਲ लग जाएगा अपने कोल x। हाँ जी, हुण की करते हैं, ये दोनों टर्म्स ने इस साइड ते लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि x² वाली साइड ते आपां टर्म्स जनरली कलैक्ट करते हैं। सो बन जाएगा x² - 2x, माइनस 6 इधर आके हो जाएंगे प्लस दे 6, तो जोड़ा 2x है वह भी इधर ले आते हैं, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x, दूसरी साइड ते कुछ नहीं बचेगा, इट मीनस उधर लिखा जाएगा 0। x² आएगा ही आएगा अपने कोल, -2x सेम साइन है, इन्होंने नहीं कैंसल कर सकते आप, सेम साइन वाली टर्म्स होणगियां ऐड। सो -2x अपन देगा -4x प्लस नाल है 6 ते दूजी साइड ते है 0। हाँ जी, हुण ये वाली जिहड़ी अपने कोल इक्वेशन बनी है ये तुसी समझ गए होंगे, जिहदी आपां पहलां गल कर रहे सी इक्वेशन दी, ax² + bx + c = 0 वर्गी इक्वेशन बन गई ये। सो ये वाली अपने कोल जिहड़ी समीकरण है ये भी दो घाती होएगी, इत्थे भी लिख लैंदे आ, विच इज of the form ax² + bx + c is equals to 0। so yes it is a quadratic equation।
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ x into x ਕਰਕੇ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ x 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1x, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸੋ ਪਲੱਸ ਦਾ 1x। फिर उस तो बाद 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣੇਗਾ 2x, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2x। ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਇੰਟੂ ਪਲੱਸ ਦਾ 1, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ x ਸਕੁਅਰ, x ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x। ਫਿਰ 1 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1x। फिर जो 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਦਾ 1x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x, ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ। 2x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1x ਘਟ ਜਾਏਗਾ, 1x ਮਿਲੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1x ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਈਨਸ 2 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ x ਸਕੁਅਰ प्लस दे 3x माइनस का 1x। हाँ जी, सिंपल सबट्रैक्शन, प्लस दे 2x मिल जाएंगे ते नाल मिल जाएगा माइनस का 3। हुण सारियां टर्म्स इस साइड ते ले आने आ। नैक्सट काम जिहड़ा आपां करदे हुंदे आ, x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, इधरों x स्क्वायर इधर आके माइनस का x स्क्वायर, 2x इधर आके प्लस का सी पहला, हुण माइनस का 2x, माइनस दे 3 इधर आके हो जाएंगे प्लस दे 3। दूसरी साइड ते कुछ नहीं बचिया तो उधर लिखा जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, इन्हों आप कैंसल कर सकते हैं। अगे माइनस का 1x माइनस दे 2x मिल गए अपन माइनस दे 3x, माइनस दे 2 प्लस दे 1। हाँ जी, साइन अलग अलग ने, सबट्रैक्शन होएगी, प्लस का 1 मिल जाएगा क्योंकि वड्डी रकम प्लस दी है इसलिए प्लस च मिलेगा अपन। दूजे पासे है 0। हाँ जी, ये देखने नूं इहदे विच एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यह तो अपने कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। फिर इत्थे लिख सकते हैं आपां विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो it is not a quadratic equation, so it is not a quadratic equation। हाँ जी, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वर्गी नहीं है, इसलिए यह दो घाती समीकरण नहीं है। नैक्सट देखते हैं। नैक्सट के भी अपने को लैफ्ट हैंड साइड ते दो ब्रैकेट्स प्रेजेंट ने, राइट हैंड साइड के उत्ते एक ब्रैकेट है, वो बाहर एक कली टर्म पई है। दोनों साइड ते ब्रैकेट्स ओपन करनियां पैणगियां। सब तो पहला आपां नूं लैफ्ट हैंड साइड ते पहला x नूं 2x नाल मल्टीप्लाई करांगे, मिल जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x नूं मल्टीप्लाई करांगे 1 दे नाल, मिल जाएगा 1x 1x यानी कि। फिर 3 नूं मल्टीप्लाई करांगे, माइनस 6x देगा ये आपां नूं। फिर 3 नूं 1 दे नाल, माइनस का 3। दूसरी साइड ते देख लेंगे की मिलेगा, x नूं x ना किया x स्क्वायर, फिर x नूं 5 ना मल्टीप्लाई किया प्लस का 5x। हाँ जी, ये दोनों टर्म्स जिहड़ियां राइट हैंड साइड ते प्रेजेंट ने, इन्हां आपां इधर लैके आने आ। सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x या प्लस 1x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x। दूसरी साइड पे कुछ नहीं बचा तो उधर हो जाएगा 0। हाँ जी, 2x स्क्वायर x स्क्वायर, 2x स्क्वायर दे विचों 1x स्क्वायर घट जाएगा, आपां नूं मिल जाएगा सिंपली x स्क्वायर। फिर x वाली टर्म्स किहड़ियां-किहड़ियां, एक आ टर्म, एक आ टर्म ते एक आ टर्म। दो टर्म्स माइनस दियां ने, सो 6 ते 5 11x बना देंगे। 11x चों फिर 1x जिहड़ा प्लस दा वो घट जाएगा, आपां नूं मिलेगा 10x। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 10x ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ 3 ਹੈ, -3 = 0। हाँ जी, ये देखने ਨੂੰ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 वर्गी लग रही है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी। सो तुसी लिख सकते हो ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ yes लिख देना है। हाँ जी, हुण करते हैं आप 6th पार्ट। 5th पार्ट है जिहड़ा ਉਹ 3rd ਤੇ 4th पार्ट वर्गा ही है, सो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई कर सकते हो। 6th पार्ट ਦੀ स्टेटमेंट है लैफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इधर सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। राइट हैंड साइड पे a माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को लगेगा। सो इधर पहला लिख लेने लैफ्ट साइड एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
राइट हैंड साइड ते a माइनस बी दे स्केयर का फॉर्मूला लगावांगे वो हुंदा अपने कोल a स्केयर प्लस b स्केयर यानी कि 4 मिल जाएगा 2 का स्केयर करे थे माइनस 2ab ओ वाला 2 ते आ वाला 2 मल्टीप्लाई होके 4 दे देंगे नाल x आ जाएगा। सो इस तो बाद सारी टर्म्स नूं इधर लेके आने एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस दे 4 ते प्लस दे 4x इक्वल टू 0 साइन चेंज हो जाएंगे जो इधर आएंगे एक्स स्केयर प्लस दी एक्स स्केयर माइनस दी कैंसल हो जाएंगे अपने कोल तो की बचे अपने कोल प्लस दे 3x प्लस दे 4x दोनों का सेम साइन है ऐड हो जाएंगे मिल जाएगा 7x प्लस द 1 माइनस दे 4 साइनस ने डिफरेंट साइनस सबट्रैक्ट होंगे 4 दे विचों एक नूं घटाया जाएगा मिलेगा 3 ते जिहड़ा 3 है वह साइन होएगा वड्डी रकम वाला माइनस का यानी कि इक्वल टू दूसरी साइड ते है 0। हाँ जी हुण ये जिहड़ी इक्वेशन है ये अपने कोल एक्स स्केयर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है सो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती यह एक लीनियर इक्वेशन है यानी कि यह एक रेखी समीकरणता है। सो इनू तुसीं लिख सकते हो विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुसीं कंप्लीट लिख सकते हो इनू। हाँ जी 7th पार्ट ते आंदे हुण आपां लैफ्ट हैंड साइड ते अपने कोल x प्लस 2 दा क्यूब है घात 3 है इस बार ते राइट हैंड साइड ते ब्रैकेट्स ने ओनू ओपन करांगे। सो लैफ्ट हैंड साइड ते पहला a प्लस b दे 3 यानी a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगावांगे जो कि हुंदा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। हाँ जी ये लैफ्ट हैंड साइड होएगी राइट हैंड साइड जड़ी होएगी मैं इक्वल टू पाके उधर लिखन लगा हूँ 2x नूं x स्केयर नाल मल्टीप्लाई करांगे ये बन जाएगा 2x की पावर 1 इत्थे है 2 इत्थे है जो मल्टीप्लाई होणगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे ये बन जाएगा x का क्यूब। नैक्सट टाइम जो बाहर 2x प्रेजेंट है 1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो माइनस 2x मिल जाएगा। हाँ जी जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो आप इत्थे लिख सकते हैं कि किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस b दा क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर ये फॉर्मूला तुसीं 9th क्लास दे विच ऑलरेडी कर चुके हो 2nd चैप्टर दे विच। हाँ जी हुण इन्हां नूं सिंपलीफाई करते हैं देखते हैं की मिलता है x सॉरी इत्थे क्यूब आना सी एक्स क्यूब इत्थे 2 का क्यूब हो जाएगा अपने कोल 8 प्लस 3 दी 2 नाल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपने कोल 6x का स्क्वेयर प्लस इत्थों मिलेगा 4 3 चौके हो जाएंगे 12 नाल आ जाएगा x ते दूसरी साइड ते अपने कोल है 2x क्यूब माइनस 2x। हाँ जी सारिया टर्म्स नूं एक साइड ते करते हैं एक्स क्यूब हाँ जी पावर्स के अकॉर्डिंग लिख लेंगे इनू आपां एक्स क्यूब 6x स्क्वेयर प्लस 12x तो इधर जोड़ा 8 है वो आ जाएगा। फिर आ वाली टर्म्स इधर लेके आवांगे माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएंगे इधर आके प्लस दे 2x दूजी साइड पे हो जाएगा अपने कोल 0। हाँ जी एक्स क्यूब वाली टर्म एक एक्स क्यूब वाली दूजी टर्म दोनों के साइन डिफरेंट है सबट्रैक्ट करांगे 2x क्यूब चों 1x क्यूब सबट्रैक्ट होके मिलेगा 1x क्यूब तो वड्डी माइनस ही है सो माइनस का 1x क्यूब हो गया। 6x स्क्वेयर वाली टर्म इको ही है सो 6x स्क्वेयर आ जाएगा। फिर x वाली टर्म्स एक टर्म आ रही दोनों के सेम साइन ने ऐड हो जाएंगे प्लस दे 14x मिल जाएगा तो कॉन्स्टेंट टर्म इको ही है अपने कोल ते उत्थों आपां नूं 8 मिल गया दूजी साइड ते 0। हाँ जी जेकर आपां इहनूं देखीए अपने कोल इहदे विच क्यूब वाली टर्म प्रेजेंट है यानी वध तो वध डिग्री या घात या पावर है अपने कोल ओह 3 जद कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने दे लई अपने कोल मैक्सिमम पावर होनी चाहिए है 2 सो इहदे विच है पावर 3 इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। इहदे बारे तुसीं लिख सकते हो विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म आ वाली सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पंजाबी मीडियम वाले भी अकॉर्डिंगली इनू लिख सकते हैं।
ओके लास्ट पार्ट है अपने कोल 8th पार्ट जिहदी स्टेटमेंट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड ते अपने कोल x माइनस 2 दी पावर 3 है। हाँ जी तुसीं इहनूं डायरैक्टली देख के जज नहीं करना कि इधर पावर 3 है तो उधर भी ओपन करांगे ब्रैकेट नूं तां एक्स क्यूब मिलेगा। सो देखते हैं इहदा अगे की हल हुंदा है। सो इहनूं तुसीं डायरैक्टली देख के नहीं कहना कदे भी कि यह एक क्यूबिक इक्वेशन है या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इहनूं पहलां सिंपलीफाई करना है आपां। सो सिंपलीफाई करते हैं लैफ्ट हैंड साइड ते तां कुछ नहीं अपने करन लई। सो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 दूजी साइड ते हाँ जी ए माइनस बी दे क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस इत्थे ए है आ वाली टर्म बी है ए माइनस बी दे क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर। हाँ जी जो फॉर्मूला लग्या हो इत्थे आपां लिख लैंदे आ ए माइनस बी दा क्यूब हुंदा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी तुसीं ऑलरेडी 9th क्लास दे विच कर चुके हो। लैफ्ट हैंड साइड ते अपने कोल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दूजी साइड दे उत्ते एक्स क्यूब। हाँ जी 2 की पावर 3 सॉल्व करांगे तो मिलेगा आपां नूं 8 इत्थे बन जाएगा 3 ते 2 नूं मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 6x स्क्वायर इत्थे 4 मिलेगा 3 इंटू 4 करांगे 12 आ जाएगा प्लस 12 नाल आ जाएगा x। सो ये अपने को सिंपलीफाई करके आ गई राइट हैंड साइड। हुण सारियां टर्म्स नूं एक साइड ते करदे हां एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब इधर लेके आए माइनस एक्स क्यूब प्लस दे 8 साइन चेंज प्लस दा 6x स्क्वायर माइनस दा इधर आके ये हो जाएगा माइनस दा 12x उधर कुछ नहीं रहा तो उधर आप लिखांगे 0 एक्स क्यूब प्लस दा एक्स क्यूब माइनस दी टर्म है कैंसल हो गई। फिर है अपने को एक्स स्क्वायर वाली टर्म साइन दोनों के अलग अलग है इहदा माइनस है उहदा प्लस दा है। सो इन्हां दा आपां नूं सबट्रैक्शन करनी पेगी 6x स्क्वायर चो 4x स्क्वायर निकल जाएंगे आपां नूं मिल जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x वाली टर्म्स देखते हैं x वाली टर्म एक आ रही तो एक आ वाली रही ये माइनस 1x और माइनस 12x ये सेम साइन है ऐड हो जाएंगे मिल जाएगा माइनस 13x। फिर कॉन्स्टेंट टर्म्स की गल करिए तो इत्थे 1 है इत्थे है 8 प्लस द 1 प्लस द 8 बन जाएगा अपने को प्लस द 9 दूजी साइड पे है अपने को 0। हाँ जी सिंपलीफाई करने तो बाद आपां देखिया कि एक्स क्यूब वाली टर्म तो कैंसल हो गई। सो अपने को जिहड़ा लास्ट दे विच इक्वेशन मिली ओह किस फॉर्म दी है ओह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म दी इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंगली पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। ਆਪਾਂ किसी इक्वेशन को देख के पहले ही जज नहीं करना कि वह क्वाड्रेटिक होएगी या नहीं पहला उन्होंने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने तो बाद लास्ट के जो मिलेगा उतों आप डिसाइड करांगे कि वह क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो जो आप ब्रैकेट्स नूं जो ओपन कर लिया सिंपलीफाई कर लिया इस स्टैप दे विच तां तुसीं इत्थे डायरैक्टली एक्स क्यूब नूं एक्स क्यूब दे नाल कैंसल भी कर सकते हो। दो टर्म्स ब्रैकेट दे दोनों साइड ते जेकर इक्को जिहियां होण साइन भी सेम होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। सिर्फ इक्वेशनस फॉर्म ही करनियां ने उन्होंने सॉल्व नहीं करना। सो देखते हैं पहली अपने को जी सिचुएशन है वो की है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार प्लॉट है वह एरिया अपन दे दिता गया 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रैथ। लेंथ ते ब्रैथ दे विच एक रिलेशन दिता है एंड फाइंड लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ प्लॉट। आपां ਉਹਦੀ लंबाई ਤੇ चौड़ाई फाइंड आउट करनी है प्लॉट दी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ब्रैथ एज्यूम करके ਤੇ लेंथ एज्यूम करके लेट ब्रैथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू x मीटर क्योंकि एरिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ मीटर स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सो ਆਪਾਂ लेंथ ਤੇ ब्रैथ भी मीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ब्रैथ x आ गई एंड
एंड लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू y मीटर्स। एरिया गिवन है आपां नूं 528 मीटर स्क्वेयर। हुण जिहड़ा क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपां नूं रिलेशन दिता होया है ब्रैड्थ ते लेंथ दे विच। वो देखदे हां की है, एक पासे लेंथ ते दूजे पासे ब्रैड्थ। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रैड्थ। ब्रैड्थ दा ट्वाइस करना है, ब्रैड्थ है x, ओदा ट्वाइस 1 मोर यानी कि ज्यादा, ज्यादा दे लई आपां ऐड करदे हुंदे आ। सो यह आपस दे विच हुण इक्वल हो जाणगे। इथों अपने कोल y ते x दे विच एक रिलेशन आ गया जिहदी उन्हें कंडीशन दित्ती सी उहदे अकॉर्डिंग। फिर आपां एरिया दी गल करदे हां। एरिया हुंदा है रैक्टेंगल दा लेंथ इनटू ब्रैड्थ। नाउ एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एरिया विच इज 528। लेंथ ते ब्रेड्थ दियां वैल्यूज आपां भरदे हां। लेंथ सी अपनी y, ब्रेड्थ सी x, सामने आ जाएगा 528। हुण इन्हां दोनों दे विच्चों अपने कोल y दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हैगी है आ वाली। सो y दी जगह ते आ वाली वैल्यू भर दिंदे हां इत्थे, तां की मिलदा देखदे हां। y दी वैल्यू भरन जा रहे हैं 2x + 1, ये y दी वैल्यू होगी। पिछे है अपने कोल इंटू x ते सामने है दूसरी साइड ते 528। हाँ जी, ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहला x इहदे नाल मल्टीप्लाई होएगा, x इंटू 2x, इत्थों आपां नूं मिल जाएगा 2x²। फिर जिहड़ा x है वो हुण सैकेंड टर्म यानी कि 1 दे नाल मल्टीप्लाई होएगा, तां इत्थों मिल जाएगा ये 1x। दूसरी साइड ते अपने कोल 528। हाँ जी, सारियां टर्म्स एक साइड ते करते हैं। 528 नूं इधर लेके आवांगे तो आपां नूं मिल जाएगा 2x² प्लस सिंपली यू कैन राइट x और 1x बोथ आर एक्सेप्टेबल। सो 528 इधर आके माइनस का हो जाएगा, दूसरी साइड ते आ गया 0। हाँ जी, ये अपने कोल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो घाती समीकरण बन गई जिहड़ी आपां नूं सिचुएशन दित्ती सी उहदे अकॉर्डिंग। ओके, हुण देखते हैं सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मीनस दो लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा गुणनफल आपां नूं दित्ता होया 306 ते असीं ओह दोनों संपूर्ण संख्यावां ने जिहड़ियां ओह लभणीਆਂ ने। तां इहदे विच पहला आपां पहली संख्या मान लांगे, फिर उस तो बाद अगे प्रोसीड करते हैं। मान लो पहली संख्या मीनस लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। मान लो पहली संख्या x, सो सेकंड नंबर। हाँ जी, क्योंकि लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां कईयां हुई ने, इसलिए जेकर पहली x होएगी तो उस तो अगली उहदे विच एक ऐड करके मिलेगी, यानी x + 1 हो जाएगी अपने कोल दूजी संख्या या सेकंड नंबर। प्रोडक्ट इन्हां दा दित्ता होया आपां नूं, प्रोडक्ट है अपने कोल 306। सो की आ जाएगा अपने कोल प्रोडक्ट यानी गुणा, इन्हां दोनों की करांगे गुणा x इंटू x + 1 ते यह आपां नूं 306 दे इक्वल दे दिता है। हाँ जी, ब्रैकेट ओपन करांगे, पहला x नूं x नाल मल्टीप्लाई करांगे तो मिलेगा आपां नूं x², फिर x मल्टीप्लाई होएगा 1 दे नाल तां ये बन जाएगा 1x ते दूसरी साइड ते 306 है अपने कोल सिंपल। नैक्सट स्टैप दे विच 306 नूं इस साइड ते ले आंदे आ, सारियां टर्म्स एक साइड ते इकट्ठियां करन लगे आ, x² प्लस इनू सिंपल x लिख सकते हैं। 306 उधर प्लस का सी, इधर आके माइनस का हो गया, दूसरी साइड ते आ गया 0। तो यह बन गई अपने कोल सैकेंड पार्ट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सैकेंड का जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। रोहन's मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, यानी कि रोहन की मदर उहदे तो 26 साल वड्डी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिज, उन्हां दी उम्रां दा गुणनफल 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हुण तो 3 साल बाद कितना होएगा, वो दिता होया 360 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन's प्रेजेंट एज, रोहन की जो वर्तमान उम्र है वो आपां फाइंड आउट करनी है। सो जो फाइंड आउट करना है उहदे तो ही स्टार्ट करते हैं, उन्होंने एज्यूम करते हैं आपां x लेट रोहन's प्रेजेंट एज
इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि इनू आप लिख सकते हैं मान लो रोहन की वर्तमान उम्र बराबर एक्स, क्योंकि उम्र सालों के विच हुंदी है इसलिए एक्स ईयर्स हो गया अपने कोल। हाँ जी, क्योंकि वो जी मदर है वह 26 ईयर्स वो तो वड्डी है, इसलिए मदर दी एज निकाल लांगे। सो मदर्स एज 26 साल का फर्क है, इस तो वड्डी है, वड्डी यानी कि वधा के होएगी उन्हां दी उम्र, तो प्लस होएगा x प्लस 26 बन जाएगी मदर दी उम्र। हुण उन्हां दियां 3 साल बाद दियां उम्रां दा प्रोडक्ट दिता होया है, 3 साल बाद दी गल हो रही है। सो पहला आपां उन्हां दियां प्रेजेंट एजिज ने, 3 साल बाद दियां एजिज निकालांगे आफ्टर 3 ईयर्स। एक कंडीशन लग गई अपनी, रोहन's एज 3 साल बाद दी रोहन दी उम्र हो जाएगी। जेकर हुण x है 3 साल बाद, जदों 3 साल बाद की गल हो रही है तो वह 3 साल वड्डा हो जाएगा, यानी वो हुण दी एज दे विच 3 जुड़ जाणगे। कई स्टूडेंट्स इनू 3x लिख देंदे ने, सो उत्थे उन्हां दी मिसटेक हो जाती है। याद रखना है जदों समय तो बाद की गल हो रही है तो जिन्ने सालां बाद की गल हो रही है उस जिहड़ा है नंबर उसनू प्रेजेंट एज दे विच ऐड करना है, जोड़ना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ जाएगा अपने कोल x प्लस 3 ईयर्स। एंड इसी तरह मदर दी एज भी निकाल लेंगे, मदर्स एज यानी कि माता दी उम्र कितनी हो जाएगी अपने कोल। जेकर हुण वो x प्लस 26 है, ये तो होगी प्रेजेंट, वो भी 3 साल वड्डी हो जाएगी वो मदर भी। सो ये अपने कोल बन जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि बन गया x प्लस, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स ने ऐड हो जाएंगे, x प्लस 29 ईयर्स आ जाएगी मदर दी एज। इस तो बाद जी कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्हां दियां एजिज का प्रोडक्ट 360 है, यानी कि उन्हां दियां जिहड़ियां 3 साल बाद दियां एजिज हैं उन्हां दा प्रोडक्ट लेना है आपां x प्लस 3 ते x प्लस 29। ये प्रोडक्ट है जिहड़ा ये 360 दे इक्वल आपां नूं रखण लई किया गया। हाँ जी, हुण आपां लैफ्ट साइड दे उत्ते जो ब्रैकेट्स ने उन्हां नूं सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं। x नूं पहली ब्रैकेट चो पहली टर्म उधर x नाल मल्टीप्लाई होएगी, मिल जाएगा x स्क्वायर, फिर यह x मल्टीप्लाई होएगा 29 दे नाल, तो मिल जाएगा आपां नूं 29x। हाँ जी, x का हो गया दोनों नाल मल्टीप्लाई। हुण वारी है 3 दी, 3 जदों मल्टीप्लाई होएगा x दे नाल तो आपां नूं मिलेगा 3x। नैक्सट टाइम 3 जाके मल्टीप्लाई होएगा 29 दे नाल, 29 3s आर 87। दूसरी साइड ते है अपने कोल 360। हाँ जी, हुण इहनूं सिंपल बनाने आ इक्वेशन नूं, थोड़ी कॉम्प्लीकेटेड है क्योंकि अपने कोल x वाली टर्म्स प्रेजेंट है, सो उन्हां नूं आपां अगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। इत्थे लिख लैंदे आ, सो x स्क्वायर 29x ते 3x ये मिल जाएंगे आपां नूं 32x प्लस 87 माइनस जिहड़ी 360 है टर्म भी इधर ले आने आ, माइनस दे 360, दूसरी साइड ते कुछ नहीं बचया तो उधर अपने को आ जाएगा 0। हाँ जी, नैक्सट इनू लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस 32x 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 87 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 300 ਆ ਗਿਆ। 300 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 27 ਹੋਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 273 ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगे आ रहा है अपने को फोर्थ पार्ट, वो स्टेटमेंट है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक जी ट्रेन है वह 480 किलोमीटर का जोड़ा सफ़र है वह तय करती है विद अ यूनीफॉर्म स्पीड, यानी इक्को जी स्पीड के नाल। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लैस, जेकर जी स्पीड है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट होंदी, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। we need to find the speed of the train। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ x ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਸਪੀਡ
ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली आप स्पीड ऑफ ट्रेन। ते जेकर उन्हें कहा अगे कि जिहड़ी स्पीड है वो 8 किलोमीटर घट हुंदी तां वो भी स्पीड देख लैंदे कि कितनी हुंदी, रिड्यूस्ड स्पीड यानी घटी हुई जिहड़ी स्पीड है वो कितनी हुंदी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगे गल करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस आपां नूं दिता होया है 480 किलोमीटर। हाँ जी, फिर वो गल कर रहे हैं ये समय की यानी कि टाइम की। तो टाइम का आपां नूं पता होना चाहिए कि फॉर्मूला की हुंदा है, स्पीड ते डिस्टेंस तो आपां टाइम किवें निकालते हैं। स्पीड हुंदा है डिस्टेंस ओवर टाइम, साइंस दे विच तुसीं पढ़िया होएगा। सो जिहड़ा टाइम है वो इत्थे चल जाएगा, स्पीड इहदी जगह ले लेगी। सो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा अपने कोल डिस्टेंस यानी दूरी बटे स्पीड यानी कि चाल या गति। सो ये फॉर्मूला आप इत्थे यूज करांगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, दो टाइम होणगे क्योंकि अपने कोल दूरी दे नाल दो गतियां ने, एक x है एक स्पीड, एक है x माइनस 8। सो टाइम निकालते हैं, एक t1 ले लेंगे, एक t2 होएगा। t1 यानी कि डिस्टेंस ओवर पहली स्पीड जेकर आप x मनते हैं तो वह आ जाएगा पहला समा 480 ओवर x, इन्ने घंटे का लगेगा टाइम जदों स्पीड है x। तो इस तरह t2 निकालते हैं, डिस्टेंस उही है, दूरी उही है, पर इस बार जी स्पीड है वो डिफरेंट है। इस बार स्पीड दी हुई है पहला नालों घटी हुई स्पीड है अपने कोल x माइनस 8 किलोमीटर। तो यह आ जाएगा कुछ समा, यह भी घंटिया के आ जाएगा। हुण उन्हें कहा है कि जिहड़े दोनों समय ने इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस है, इन्हां दा अंतर है, वो आपां नूं दिता होया है 3 घंटे। 3 आवर्स का डिफरेंस आपां नूं दिता होया है। हाँ जी, हुण अपने कोल हाँ जी हुण आपां सोचना है कि किहड़ी सिचुएशन दे विच समा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ जी, इत्थे स्पीड है x, इत्थे स्पीड है x माइनस 8 यानी कि आ वाली स्पीड इस नालों ज़्यादा है, या कह सकते हैं कि आ स्पीड इस नालों घट है। जदों चाल यानी कि स्पीड घट होएगी तो किसी भी दूरी नूं तय करन दे लई समा वध लगेगा। सो आ वाला जिहड़ा केस है, इस केस च समा वध लगेगा, इस केस च समा घट लगेगा। हुण वध वाले नूं आपां रखदे हां अगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिहड़ा t2 माइनस t1 दोनों समयां दा जिहड़ा अंतर है, डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स, ये दिता होया आपां नूं 3 आवर्स। सो सामने 3 आ जाएगा। t2 आपां अगे क्यों लिया वो तुहानूं एक्सप्लेन करता कि इस जदों स्पीड घट होएगी उदों समा लगेगा वध, ते वध वाला अगे रखांगे, घट वाला पिछे रखांगे, तां ही उत्थों अपने कोल जिहड़ा समय का फर्क है, टाइम का डिफरेंस है, वो आएगा। सो t2 की वैल्यू फिल करते हैं इत्थे आपां 480 ओवर x माइनस 8 माइनस t1 की वैल्यू जो कि है 480 ओवर x इज इक्वल्स टू 3। इधर नीचे 1 लेंदे हैं। हाँ जी, हुण आपां की करांगे, अपने कोल इधर फ्रैक्शन की फॉर्म दे विच ने जिहड़ियां दोनों टर्म्स ने। सो आपां की कर सकते हैं, इन्हां दा लैंदे हैं एलसीएम। उस तो पहला आपां दोनों च देख सकते हैं कि 480 कॉमन है। सो 480 कॉमन कर सकते हैं उपरों न्यूमरेटर्स दे विचों। हाँ जी, इत्थे लिखण लगा 480 मान लो कर लिया कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 480 बाहर चला गया 1 ओवर x माइनस 8 माइनस ए चो भी 480 बाहर चल जाएगा 1 ओवर x रह जाएगा। दूजी साइड ते है अपने कोल 3 ओवर 1। ठीक है जी। हाँ जी, हुण ये जिहड़ा 480 है इत्थे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा। सो इनू अगे इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर x माइनस 8 माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 ओवर
480। इस साइड ते हुण आपां एलसीएम ले लैंदे हां। हुण ये सिंपल हो गई है, एलसीएम लवांगे तां x इहदे नाल मल्टीप्लाई होके आपां नूं x मिलेगा माइनस आ वाली जिहड़ी टर्म है इहदे नाल मल्टीप्लाई होएगी x माइनस 8, इनू ब्रैकेट च रख लेंदे क्योंकि माइनस का साइन है उहदे करके रख ली, ओवर इन्हां दोनों का हो जाएगा प्रोडक्ट x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, इन्हां दी कटिंग हो रही है 16 दूना 32 16 3 48 160 आ जाएगा। सो 1/160। हाँ जी, इधर हुण आपां ब्रैकेट ओपन करांगे माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 ओवर इधर x दी x नाल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अपने कोल x स्क्वेयर, फिर x दी 8 दे नाल माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1/160। x दे नाल कैंसल हो जाएगा। सो 8 ओवर x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1/160। हाँ जी, इस तो बाद आप इन्होंने आर पर गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे। आ वाली टर्म 1 नाल मल्टीप्लाई होएगी तो आपां दोबारा तो x स्क्वेयर माइनस 8x मिल जाएगा। दूसरी साइड ते इन्हां दोनों का प्रोडक्ट 160 इंटू 8 आ जाएगा। ये बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 16 के टेबल दे विच 8 तक रीड करांगे तो अपने को आ जाएगा 128 नाल आह 0 है, ये हो गया। फिर यह टर्म इधर लेके आवांगे तो आपां नूं मिल जाएगा x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू दूसरी साइड पे कुछ नहीं बचा था 0। हाँ जी, ये अपनी कोल फाइनल जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगी। हाँ जी, हुण इत्थे मैं एक गल तुहानूं दसना चाहना कि x माइनस 8 नूं ब्रैकेट दे विच क्यों कीता सी। जदों भी विचकार दो फ्रैक्शन वालियां टर्म्स ने जिन्हां नूं आपां सॉल्व करन लगे हां ते विचकार माइनस का साइन होएगा तां तुसीं याद दे नाल आ वाली टर्म है जिहड़ियां या आ वाली टर्म होणगी इन्हां नूं ब्रैकेट च रखांगे। जेकर एक तो ज़्यादा टर्म्स होणगीਆਂ प्रेजेंट, क्योंकि इत्थे दो टर्म्स सी ब्रैकेट च रख लिया ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ करने ने, इसलिए इनू ब्रैकेट च रखा होएगा एक तो ज़्यादा टर्म्स नूं, तां तुहाडे मिसटेक के चांसिस घट जाणगे।